that today 60% of Western countries are having a AI girlfriend. Boys are actually going towards AI girlfriend options more. So in next 3 years, it is said that people will start getting married to the AI girlfriends. Why is this thing increasing a lot? एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को बात करना नहीं आता. They don't want AI girlfriends. They don't want to talk to technology. It's just they're scared to talk to humans. First is situationship, second is benching, and third is example zone. What is this? Situationship is basically कि आपको कमिट भी नहीं करना है पर आप रिलेशनशिप के फ़ायदे भी उठाना चाहते हो, पर जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से एक्ट करेंगे. मतलब कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट हो गया बेसिकली. So I know that you have been solo traveling many places, right? मुझे बताओ कि 3 top places which will be like heaven for women, which they can travel alone, which is obviously safe, secure, and it is actually worth it to go there so that they get empowered. What is relationship? Like if you want to break that word, what is relationship according to you? Welcome back to the Last Laugh podcast. तू कर लेगी यार. क्या आपने ये कैंपेन सुना है? आई एम वेरी श्योर आपने इंस्टाग्राम या रील्स पे ये ज़रूर सुना होगा, तू कर लेगी यार. I tell you one thing, there are so many people who are hustling and who are actually trying to prove their point. But there are so many people around them who are telling them कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करेंगे तो ये गलती करेंगे. Like everything which will be ending in a negative story. But what if किसी ने आपको ये बोला रहता कि तू कर लेगा यार, तू कर लेगी यार. And that is your internal guiding light which will help you to achieve your goals. Today's guest is very special and she is the one who started this nationwide campaign तू कर लेगी यार. And I'm very sure कि ये Valentine's week पे आपको बहुत सारी एडवाइसेस ये पॉडकास्ट से मिलेगी. वनिका एक कंटेंट क्रिएटर, एक पोएट एंड एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है. शी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस. शी इज वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट इन द टेपर टेल एंड आई एम वेरी श्योर आपको उनसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेगी. वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट विथ लॉट्स ऑफ लव एंड इन द होल पॉडकास्ट आई एम वेरी श्योर वुमेन्स एंड गर्ल्स विल always find a relatable content in this podcast. Guys, Last Laugh की टीम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है to call all such peoples who can give valuable insights to you. हम ऐसे लोगों को बुलाना चाहते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हसल और बहुत ही ज़्यादा फेलियर्स देखे हो, but today they are successful. So hit the subscribe button right now and share this particular podcast episode to someone who can connect to the stories which we share to you guys. So let's start with something which is like Valentine's Day is coming, 14th Feb, right? Give me like 4 lines for someone or for everyone. For everyone. तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार प्यार में पड़ना ना हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चॉइस हो जाती है. और दूसरी बार के बाद जब पढ़ते हैं, आफ्टर फर्स्ट टाइम इट्स ऑलवेज अ चॉइस, एंड देन वी आर वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो these lines I wrote not for that one particular person, but for anybody who comes into my life next after my first thing. कि ऐसा होता है कि अगली बार आओ तो दिल में थोड़ी जगह लेकर आना, अगली बार आओ तो दिल में थोड़ी जगह लेकर आना, मोहब्बत फुर्सत से होती है, अपना थोड़ा वक्त लेकर आना. दिल लगी महंगी है काफ़ी, दिल लगी महंगी है काफ़ी, कर्ज पर ही सही अपने साथ हिम्मत लेकर आना. अगली बार आओ ना तो मुझे चाहने की चाह से पहले बस खुद को साथ लेकर आना. Wow. Wow. So I don't know, like, yeah, deserves this. Great. Amazing. So that's a great start to the podcast. And हम start करेंगे सबसे पहले obviously आपकी story से, like because it's more going to be towards woman empowerment. And I want to know 4 phases of girls, right? First is the childhood, second is the teenager, third is adulthood, and fourth is after marriage. कौन से स्टेज पे, फर्स्ट आई वांट टू नो योर पर्सनल स्टोरी, कौन से स्टेज पे कौन सी प्रॉब्लम्स आई है और कैसे सॉल्व किया है, एंड व्हाट आर द जेनरिक प्रॉब्लम्स विच गर्ल्स फेसेस एंड उसको कैसे सॉल्व किया है और सॉल्व किया जा सकता है. अच्छा, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हो गए वैसे लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू वन बाय वन आंसर.
तो हाँ सही बात है, 4 फेजेस होते हैं जितना अभी तक मैं बता सकती हूँ, पर मेरी शादी नहीं हुई है तो 4th वाला तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया. आई एम नॉट प्लानिंग टू इंटेंडिंग टू गेट मैरिड इवन दो everywhere I keep mentioning that I would really like a very wealthy sasural. But that is a joke, that is a joke. If you Lord. can take it, otherwise. Nice, nice. So I come from Jaipur, Rajasthan, और मेरे मम्मी पापा, मेरा पूरा फैमिली वहीं का है. My mummy and papa were married when they were 19-20 years of old. Like मतलब पापा 21 के थे, मम्मी 19 की थी, और उन दोनों को ही नहीं पता था मेरे साथ क्या करना है. तो वो फिगर आउट कर रहे थे कॉन्स्टेंटली कि ये जो बच्ची हो गई है हमारी, इसके साथ करना क्या है. सो आई वॉज द एक्सपेरिमेंटल किड in my house, and that is great. That is really great because then they were very smart enough to plan my brother 6 years after I was born. So that was so for the initial 6 years of my life, I was living with my family in Jaipur, and I used to go to a girls play school, girls coaching. तो मेरे मम्मी पापा पता नहीं क्यों मेरे को लेकर इतना इनसिक्योर थे कि उन्होंने मुझे लड़कियों के आसपास ही रखा. और इतना ही नहीं, इवन जो गली में हमारी कॉलोनी में लड़के थे सबको मेरा भाई बना दिया था. तो आई डिड नॉट know anything else existed. I was just surrounded by brothers and girls, and mostly girls. So I came from that background where initially when I was just I think 6-7 years old, I saw my bua being forced into a marriage, even though she wanted to be a CA and she wanted to study further because society क्या कहेगी, शादी की उम्र हो गई है. And not just her, I saw every woman around me being forced into something. मेरी मासी हो, है ना, मेरी दूर की मासी हो, चाची हो, every woman that I was surrounded by, from my neighborhood to my family to my extended family, I saw them being in somewhere, like being somewhere where they did not want to be. Like they were happy with it, but they still had this thing कि यार काश हमको मौका मिलता ना तो हम ये कर लेते. तो बचपन में तो इतना समझ नहीं आया, बट आई थिंक इन टीनेज ग्रोइंग अप आई डिड नॉट वांट टू हैव दैट रिग्रेट. सो एज अ यंग स्टूडेंट I decided that I needed to take my life in my hands, and I cannot let my father or anybody in my family take decisions on my behalf. And it was like the survival instinct कि मुझे इनके जैसा अपना फ्यूचर नहीं करना है. Rebellious. Yes. मैं रिबेल नहीं करती थी, मैं झूठ बोलती थी. मैं बहुत बहुत बढ़िया संस्कारी लड़की थी, हर चीज़ मानती थी. आई वॉन्टेड लव फ्रॉम पीपल. आई थिंक वी ऑल वॉन्ट लव. तो बचपन से मुझे पता था कि अगर मैं सबकी बात मानूंगी ना तो मुझे प्यार मिलेगा. तो इसीलिए मैंने इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑसवर्ल्ड, नॉडी, ऑल ऑफ दीज कार्टून्स, आई वुड सिट एंड वॉच कभी क्या नाम है उस सीरियल का, कभी खुशी, नहीं दैट इज द मूवी, कहानी घर घर की, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, विद माई दादी, बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू लव मी. I would not ask, like I would not be unreasonable in front of my father because I wanted him to love me. So I knew that if I wanted to be loved, I needed to be someone. So मतलब उस तरीके से फिर I shaped, but then in teenage I wanted to also have like life on my terms and not want to be like everybody else. But there was still fear to break that chain of being somebody for everybody for love, because I still wanted love. तो इसीलिए मैंने झूठ बोलना शुरू किया. मैं बहुत झूठ बोली, मतलब इट वॉज क्या बोलते हैं उसे, कौन से लायर्स होते हैं वो, ब्रूटल, नहीं ब्रूटल नहीं. सो इट वाज, आई थिंक इट वाज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो मैंने अपनी थेरेपी में डिस्कवर किया कि भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत थी. बट आई वुड लाई, जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड लाई इफ आई एम गोइंग टू अ फ्रेंड्स हाउस. जैसे कि आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ. एक बार क्या हुआ, आई वाज आई थिंक 15-16 ईयर्स ओल्ड, और मैं अपने रूम में बैठी थी और अपने एक दोस्त से बात कर रही थी जो एक कोचिंग का लड़का था, और हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं. और अब बात करते करते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि 10 बजकर पापा घर पे आ गए हैं. तो अब पापा मेरे रूम में आए और पापा ने कहा किससे बात कर रही है, तो मैंने कहा अपने बेस्ट फ्रेंड से. तो
कहते कौन सी बेस्ट फ्रेंड, आवाज़ तो नहीं लग रही उसकी। मैंने कहा राधिका है, देख लो देख लो। तो पापा ने कहा दिखा, और क्या है, बेस्ट फ्रेंड ही लिखा हुआ था उसका भी नाम। तो पापा ने देखा अच्छा, और मेरा बेस्ट फ्रेंड समझदार था तो उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना भी समझदार नहीं था कि जब पापा ने दोबारा कॉल किया तो फ़ोन ना उठाए। और फिर जो मेरे को डांट पड़ी है बहुत ही खतरनाक। और फिर पापा ने मुझे समझाया कि बेटा मैंने तुझे इसलिए नहीं डांटा कि तू एक लड़के से बात कर रही है, बल्कि इसलिए डांटा क्योंकि तू मुझसे झूठ बोल रही है। बट आई वाज सो स्कैर्ड, लाइक इट वुड, जैसे कि मम्मी ने अगर पूछ लिया गीजर ऑन है क्या, मैं बोलूँगी नहीं, जबकि ऑन है। तो इट आई बिकेम लाइक अ कंपल्सिव लायर, दैट इज द टर्म। Okay. It started for big things, but then it also got in the smaller things. जब एक आदत बन जाती है ना तो वो ज़रूरत बनने लग जाती है। Got it. ठीक है, it starts as something that you're doing once in a while, but when it becomes the only way you can do things, or you think the only way it can make things happen, then it becomes your necessity. और वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आई थिंक उधर से फिर वो वाला सीन चालू है। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू माई लाइज, बिकॉज आई एम हु आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माई लाइज। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी पहली सोलो ट्रिप मैंने झूठ बोल के की थी। मैंने एडमिशन बॉम्बे में झूठ बोल के लिया था। मैंने मम्मी पापा को कन्विंस बहुत सारे इवेंट्स के लिए, जब मुझे बात मतलब स्टेज पे कुछ बोलना होता था या फिर एनीथिंग दैट आई हैव डन, it started with a lie. And then now my parents know everything because of therapy. I have known it and then also confronted them. But I just felt like the only way to do things was by lying. Okay. And I'm I feel very bad about it. कि यार हम लड़कियों को क्यों इतना झूठ बोलना पड़ता है अगर हम अपने कस्बे से बड़ी लाइफ अपने लिए बनाना चाहें तो। क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंड किया जाता है कि अगर ये तुम्हारी माँ के लिए सफिशिएंट था, तुम्हारी माँ की माँ के लिए सफिशिएंट था, तुम्हारी पड़ोसी के लिए सफिशिएंट था, तुम्हारी बहन के लिए सफिशिएंट है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? Why can't you see dreams just like everybody else? You have to be like everyone else. You have to be this ideal संस्कारी गर्ल. और वो प्रेशर जो होता है ना, हम लोगों को इतना शेप करता है कि हम कभी कभी तो अपनी आवाज़ ही नहीं ढूंढ पाते. एंड देन वी, even if we want to make friends or we want to just do things, we have to constantly figure out ways that are sometimes lies or sometimes rebelling. पर दोनों ही नहीं करने चाहिए ना. True. तो मुझे लगता है कि people, it's a very I don't know if it's a right statement to say, but I have often felt, है ना, और अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है तो काट देना, ठीक है. पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी बातें होती है ना कि गर्ल्स आर प्रॉब्लमैटिक, गर्ल्स स्टार्ट बिहेविंग वेरी डिफरेंटली अराउंड गाइज, है ना, फीमेल फ्रेंडशिप्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सब, all of this is happening because of the way girls are being brought up in our country. And not just girls, Okay. men also. तो हम बहुत शेप्ड है जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि एक लड़की होना कैसा है या फिर एक महिला होना कैसा है, और हम जिस तरीके से हमने आसपास चीज़ें देखी होती है उसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट है टू लाइक जस्ट बी हु वी आर, बिकॉज इतने सारे प्रेजुडिस हैं कि वी जस्ट कांट बी who we want to be. True. And it's like breaking and unlearning. Right now also मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर स्टेप पे अनलर्न करना पड़ रहा है कि क्या सही है क्या गलत. जो मुझे सिखाया गया था वो उस टाइम के लिए शायद सही था, उनके लिए सही था, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं है. जैसे कि जब मैं आफ्टर टीनेज व्हेन आई केम टू बॉम्बे फॉर माई स्टडीज़, आई वॉज 18-19 years old. I came here and I said कि जयपुर में मैं बनना चाहती थी ये कि बिग सिटी गर्ल, आई वॉन्टेड टू हैव लाइक अ बिग ड्रीम, है ना, स्मॉल फीट बिग ड्रीम्स टाइप गर्ल. पर जब मैं यहाँ पे आई तो मैं अपने अंदर का जयपुर नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि मुझे चीज़ें सिखाई गई थी कि इस तरीके से रहना है, लड़कों से बात नहीं करनी है, खुद के लिए अपना स्पेस बना के रखना है, अपनी मर्यादा में रहना है, अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, मम्मी पापा से इस तरीके से बात करनी है. तो आई हैड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ दैट आई केम अलॉन्ग विथ to Mumbai,
बट व्हेन आई गॉट एडमिटेड टू अ साउथ बॉम्बे कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, यहाँ पे सब बहुत ही विपरीत था मेरी चीज़ों से. मतलब यहाँ पे girls were talking to boys and nobody was questioning them. Nobody was making jokes about it. और कोई भी उनका कैरेक्टर जज नहीं कर रहा था. यहाँ पे लड़कियों को जो पहनना था वो पहन रही थी, and there was nobody looking at their bodies like the way it used to happen in and around my school. यहाँ पे parents would come with their children and talk to them in the most casual language possible. तो मेरे लिए ये सब was very like it was a change. और मुझे नहीं पता था कि यार अब करना क्या है इससे. और मेरे पापा मुझे बोल के गए थे कि देखो अगर इनकी तरह बन गई ना तो हमें भूल जाना. बोला नहीं था उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स, लेकिन उन्होंने आंखें ऐसी दिखाई थी मुझे जब वो ओरिएंटेशन पे आए थे और उन्होंने सबको कपड़े पहनते हुए देखा था और बातचीत करते हुए देखा था. यार उनके लिए भी तो चेंज था. ही इज नॉट रॉन्ग बिकॉज ही हैज ऑल्सो बीन इन दैट एनवायरमेंट. तो आई वॉज लाइक कि अगर मैं इधर इनकी तरह बन गई तो दिक्कत हो जाएगी. तो इसीलिए इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली आई स्टार्टेड जजिंग ऑल ऑफ दीज पीपल कि मुझे इनकी तरह नहीं बनना है. ऑल ऑफ दीज पीपल नो. अगर मैं इनके साथ रहूँगी ना तो मैं इनकी जैसी बन जाऊँगी. तो I distanced myself from people in my college and I made no friends. Like I had people who would hang out with me but no friends. उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और लोगों को ये समझना चाहिए. But I did not have friends in my college and I was this one person living aloof, wearing kurtas, feeling very conscious about my body, conscious about who I was, constantly figuring out. It was eventually that I realized कि यार जो acceptance मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे दें. Being a small town girl, जयपुर इज़ नॉट अ स्मॉल टाउन दो, बट हाँ एक लड़की जो एक दूसरे शहर से आती है, आई ऑल्सो नीड टू गिव देम दिस एक्सेप्टेंस. माई वैल्यूज आर माई ओन, दे आर नॉट रूल्स. Got it. एंड वैल्यूज आर meant to be accepted, not followed. तो इट वॉज अ बिग लेसन दैट आई लर्नड कि यार कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना ज़रूरी है. और अगर आप कॉन्स्टेंटली अडेप्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, सिचुएशंस को, आप अपने आप को उस चीज़ में ढाल नहीं रहे हो, देयर इज़ नो वे यू कैन लाइक फील कंटेंट विद वेयर यू आर. तो या दैट. So you had a teenage where you had technically no friends, but yeah, I mean, how did you went from your teenage till now, right? So being a startup owner now, not a startup but a exponential owner, right? So वो challenges अलग है और वो challenges में बहुत सारी judgment होती होगी by people outside के ये लड़की है नहीं कर पाएगी, investments नहीं कर पाएगी, financials नहीं देख पाएगी. I'm very sure बहुत time आया होगा and your clientels or your stakeholders आप पे विश्वास नहीं रखते, right? Because ये कभी ना कभी शादी करके it's a risky thing and I'll tell you why. There are 90% in the country जो धंधा चला रहे. 90% of the people are looking at accountants. ऐसे रोल पे accountants को ढूंढते हैं जो they are married girls, women basically, और basically they don't copy paste their whole business model. तो उन लोग क्या करते हैं कि accountant चाहिए तो criteria है selection का कि 35+ years old or married with 2 child. So the person stays longer. That's one point. And second is boys are often told aggressive, सीख के चला जाएगा. Girls सीख के कहाँ जाएगी, जॉब ही तो करना है. This is there is still going, this is still going at many places in many societies. So I want to know from you, like, what were your challenges towards from your teenage till now? अब वो भी एक part बहुत important. आई थिंक मैं तो अपनी अर्ली 20s में हूँ, तो मेरा कांस्टेंट तो यही रहता है कि आई एम फिगरिंग आउट व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट आई वांट टू बी. एंड ऑल्सो आई एम डिस्कवरिंग माई वुमनहुड. कि ऐसा कोई है नहीं ना जिसको देख के मैं बोलूँ कि यार इन माई क्लोज फैमिली कि यार यही पाथ मुझे फॉलो करना है. तो आई थिंक दैट लैक ऑफ राइट एग्जाम्पल एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट आई वांट टू डू. तो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहता है अबाउट क्लैरिटी ऑफ द स्टेप्स आई नीड टू टेक एंड हु आई वांट टू बी.
तो बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं चीज़ों को लेके, कंटेंट क्रिएशन, दी स्टार्टअप्स। आई हैव नॉट डन वन स्टार्टअप, आई हैव डन मल्टीपल स्टार्टअप्स। Yeah. और बहुत सारी चीज़ें करके लाइक आई गेट कन्फ्यूज्ड। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्ट मीट्स एवरी पर्सन हु इज़ इन अर्ली 20s। True. तो मेजर वो तो वही रहता है। बाकी अगर बात रही पीपल नॉट टेकिंग मी सीरियसली बिकॉज आई एम अ वुमन, तो आई मेड पीस विद इट। Like, I don't want people to take me seriously. That is the best part. I think it's my strength. क्योंकि ना then I can, मतलब I've realized कि सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों को हक मिलना चाहिए, treated equal, सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि the only way equity is possible in this world, equality नहीं, equity, is when women understand how beautiful it is to be feminine. Okay. मैं नहीं उठाना चाहती सूटकेस अगर भारी है तो, क्योंकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है वैसी। जिस दिन मैं जिम करने लगूंगी कर लूँगी, या फिर होगी तो मैं कर लूँगी, लेकिन एज वीमेन वी आर सेंसिटिव, एज वीमेन वी माइट नॉट हैव दैट मस्कुलर स्ट्रेंथ एज मेन हैव, सो आई डोंट वांट टू पुश माई सेल्फ हार्डर एंड लूज दैट पार्ट। तो आई थिंक इट्स अबाउट डिस्कवरिंग फेमिनिटी विद इन माई सेल्फ is what is very important than actually being like, oh, I want to prove that everybody is going to take me seriously. True. हम लोगों की strength point ये है कि हम प्यार से बात करके काम निकलवा सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान मुझे ऑन द फेस ऑफ इट सीरियसली ले। मैं नहीं होना चाहती अग्रेसिवली कि तुम क्यों सीरियस नहीं हो रहे हो। मैं प्यार से बात करूँगी, तुम पहली बार नहीं लोगे, आई विल ट्राई हार्डर, बिकॉज आई थिंक आई हैव मोर पेशेंस as a woman. I have more understanding of the other person, the human side as a woman. And all of these qualities that I have, I want to use them best to make my way, instead of being like, oh, I want to be more masculine. नहीं, I want to have a balance. अगर किसी दिन मेरा feminine side ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो मैं उस तरीके से काम करना चाहती हूँ। किसी दिन अगर masculine side दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो उस तरीके से। So I think I still don't have a clear cut approach या फिर clear cut idea about what this is. But एक चीज़ के बारे में मैं श्योर हूँ कि मुझे मर्दों की तरह नहीं बनना है। Okay. I don't want people to see me as a man. Okay. I want people to see me as a woman who is a woman and who is going to do womanly things, who is Right. going to love to have a family, who is going to love in a certain way, who is going to just be herself. Whatever is it that is she's going to feel, she's going to be PMSing, she's going to have periods, she's going to feel all these weird things because of it, and I don't want people to ignore that, and I don't want myself to ignore that. Okay. ये सब है मेरे अंदर, and everything that comes with being a woman, I want to accept it and make the best out of my journey. I don't want to compare my journey to a man's, और नहीं करना वो सब। Wow. Amazing point. I mean, this is like, accept the way you are. That's something which is a great point to take back. But again, like a bit controversial, but this is very important for me to ask you. There are women's, right? So there are obviously categories. So there is middle class. There is obviously the higher class, upper class, right? अब recent trend ये चल रहा है. And मैंने भी बहुत time, because I have friends, I have community around, and maybe whatever I'm speaking right now will be biased, but this is what I have observed a lot, right? So there are women who have high dreams in middle class, and they're coming from small towns, or they're coming from different cities. They're shifting to Mumbai. They have high aspiration. They're trying their hard way, right? They're trying their hard way. They're working for 7 to 8 years, and after that they come to a piece कि नहीं अब शादी करनी है, right? अब शादी करनी है, and I want to obviously have a wealthy or a rich guy, right? Yeah. Second phase, the second part of the same argument is the upper class women's, right? वहाँ कैसे चल रहा है कि the women want to work, but because of the families, because अब तो अमीर घर की लड़की है, मतलब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, पति कमा रहा है, you don't have to work anymore. And then there is a girls who are actually fighting against it, and they want to work for it. They want to work for themselves, right? There are two things which I'm looking at. One is who have high aspiration. They're trying hard. And after some years, they are like, अब तो बस हमें settle होना है.
अब हमें like maybe you know there are many women who have give up on their careers also after marriage in the middle class, but in the upper class it's very different. So is this something which I am feeling, or is it something which is coming from the nationwide? I don't know, right? But what is your point of view towards this, both the sections of the women's? सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स का एक डेटा है कि लेस देन 8% ऑफ विमेन आफ्टर स्टडिंग आर वर्किंग इन अर्बन एरियाज विच इज़ लेसर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. तो Okay. मुझे ऐसा लगता है कि अगर 8% से भी कम महिलाएं काम कर रही हैं तो ये चॉइस तो नहीं हो सकती. Okay, that's deep. हाँ, रीजंस हैं जो कि बहुत अंदर तक दबे हुए हैं, जिनको शायद निकालने में बाहर बहुत वक्त लगेगा, और उसका जवाब मेरे पास है नहीं. बस मुझे इतना पता है, जैसे कि अगर मैं कल को कहूँ कि यार सुनो, आई वॉन्ट टू हेल्प ऑल ऑफ दिस women एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस नंबर, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं केपेबल ही नहीं हूँ. Okay. What I can do is I can make my choice. I can work on my life. I can maybe help 2-3 people around me and set an example for people, the girls who see me on Instagram, and tell them that if I can do it, they can do it too. And that is exactly my motto on IG. Ki I want to tell 10 million girls that tu kar legi yaar. They can do it. Yeah. And this is the reason है ना, तू कर लेगी यार is so important to me is because as a kid whenever I would fall down, जब भी मैं गिरती थी या फिर मेरे को कुछ और करना होता था, मेरे को एनुअल फंक्शन में लीड के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाता था या फिर डांस के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाता था, तो मैं घर आके मम्मी को बोलती थी कि यार मम्मी मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, मुझे करना है. और मम्मी कहती थी कि जाने दे बेटा, कोई बात नहीं. आई वॉन्टेड हर टू से तू कर लेगी यार. I wanted her to tell me कि if not this, that you can do something else. But she would always say कि कोई बात नहीं, जाने दे. Then I wanted my school teachers to tell me कि if I'm not good at something, I can still work hard on it and make it happen. They would just tell me that I'm not meant for it. जैसे कि जब मैं हेड गर्ल बनना चाहती थी या स्कूल प्रिफेक्ट बनना चाहती थी, सब ने मुझे कहा कि मैं इतनी बबली चर्पी हूँ कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे. आई नीड टू चेंज माई सेल्फ. और मेरे एटीट्यूड के साथ ना मैं पोजिशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊँगी, जबकि सारा काम मैं करती थी. आई हैड द ग्रेटेस्ट आइडियाज़ इन स्कूल. मेरे को होस्टिंग करना आता था, मुझे बहुत मज़ा आता था. आई वुड स्पेंड माई एंटायर टाइम इन इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन स्कूल इवेंट्स, ऑल्सो मैनेजिंग माई स्टडीज़. आई वुड डू ऑल ऑफ दैट, बट नो बडी गेव मी द रोल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फेस ऑफ इट ऑफ बीइंग अ हेड गर्ल और अ कैप्टन और अ प्रिफेक्ट, बिकॉज सबको लगा कि मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा. आई वॉन्टेड देम टू टेल मी दैट आई कैन डू इट. दे डिड नॉट. आई वॉन्टेड माई फ्रेंड्स, जिनसे मैं अभी जाकर अगर बात करती हूँ कि यार सुनो मेरे ना लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी मेरी पूरी बात सुन के मुझे ज्ञान देने लगते हैं, बताने लगते हैं कि तुम्हें इस तरीके से नेविगेट करना चाहिए, तू इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि तू सोचती बहुत ज़्यादा है लेकिन करती नहीं है, तू ये है तू वो है. अरे नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो पॉसिबली मेरे ओवर थिंकिंग दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है. सो ऑल आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू इज़ तू कर लेगी यार. You know how to do it. You have always done it. And you have the capacity. You have everything in you to make it possible. I wanted the world, everybody who was close to me, to tell me that I can do it. And nobody did. Some people did, and that is why I'm here. But बहुत उस चीज़ का अगर वो और मिल जाता ना, तो मैं आज इतनी इनसिक्योर, इतनी डरी हुई, इतनी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होती. मैं मानती हूँ लोगों को लगता है कि मेरे पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, बट there is another side of me which is also very scared, which is also very insecure, which is also very constantly fearing कि यार मेरे पास है तो सही ये सब, मैंने कर तो लिया ये सब, लेकिन what if I am not able to handle it properly. तो I just feel if as a kid, if in my growing up years, if in my initial adult friendships, सब ने मुझ में वो भरोसा दिखाया होता, instead of either giving me ज्ञान या फिर whatever, I would have been a very confident woman. True. Which I'm trying to be right now, which I will be. लेकिन
I know what a tu kar legi yaar can mean to a person. And that is why I want to tell other girls, tell everybody who sees my content that. True. It's a nationwide campaign, I'm telling you. It's a nationwide campaign. Yes. And I'll tell you why. This is something which is special from my journey also. I have so many friends around. And I'll tell you, mere ghar pe, in fact, right? My mom always wanted to be a hairstylist, right? Before marriage, she was one of the best. I would say in the parlor, she used to go and she used to do it, right? But eventually, after marriage, she gave up on the dreams. You know why? Because nobody motivated her कि तू कर लेगी यार. And eventually, obviously my dad or people around her wanted her to be obviously the housewife there at that time. Obviously, it's 30 years back, right? But आज जब मैं mom को पूछता हूँ ना, mom, I know for a fact my mom has this internal desire that I could also have learned and I could also have my own business. I would have been successful today. Today, she also goes back to those times and says that कोई होता ना मुझे motivate करने वाला, यश तू होता ना तभी मैं कर लेती. That's तू कर लेगी यार. So I totally relate to that because I have my friends now also whom I am motivating today. And I am telling them तू कर लेगी यार, शादी हो कर लेगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता अगर the other half is not supporting, फिर भी तू कर लेगी. It's just that you have to always fight for your dreams, right? So thank you for I will say it's a nationwide campaign, and I will say that I would like to also get associated with it. Wherever you feel that I can contribute, I would definitely be like, tu kar legi yaar. Great. So let's go to something which is very important, and I'll tell you, अभी बहुत सारा trend ये चल रहा है कि AI, because I'm representing AI, and I'll tell you कि AI में there is something known as AI girlfriends. Instagram पे अगर आप roll out करोगे, हर एक नया चेहरा है. And there are AI avatars which are becoming girlfriends, right? Twitter, Instagram, YouTube. And I've actually written a LinkedIn post about it, that today 60% of Western countries are having an AI girlfriend. And I learned it from one of my employees. There is a term known as benching. You have a backup option. Okay. Can you imagine there's a backup option? अगर आपकी relationship टिकी नहीं, then backup option में AI girlfriend है. So I'll tell you there's a cycle now. पहले हम लोनली थे, इसलिए हम AI गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं. AI गर्लफ्रेंड के पास जाके we are becoming more lonely. So it's a cycle. So first is basically you are going towards problem का solution ही problem है, right? So I want to know from you first is कि ये problem क्यों हो रही है? Why there is loneliness which is there everywhere? And AI girlfriend, as in obviously there are AI boyfriends also, but maximum I'll tell you boys are more lonely than girls. अच्छा. Yeah, that's a fact. That's a research, right? So I don't know how, but boys are actually, going towards AI girlfriend options more. So why is this thing increasing a lot? And I'll tell you, in next 3 years, it is said that people will start getting married to the AI girlfriends. It's shocking. So either, there is like अवेलेबिलिटी ऑफ गर्ल्स और ख़त्म हो गई कि सब लड़कियां दुनिया में है ही नहीं, अब लड़कियां गायब हो गई है कि लड़कियां लड़कों को मिल ही नहीं रही है. व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम? लेट्स आइडेंटिफाई दैट. एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को बात करना नहीं आता. ओके. बस यही प्रॉब्लम है. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल आर लोनली. ओके, सो यू आर सेइंग दैट they don't want AI girlfriends, they don't want to talk to technology, it's just they're scared to talk to humans because they're scared of being judged. They are scared of feeling rejected. They are just so scared to feel things that are not positive, that they don't understand the importance of negative feelings in our life. Jealousy is not a bad feeling. Rejection is not a bad feeling. Any of these feelings, anger is not a bad feeling. It's all of these things are meant to be felt. So I think the only reason we are becoming a lonely generation is because we are too scared to talk, we are too scared to feel. Okay. And the solution to loneliness is not technology. It will not just AI girlfriends, whether it's social media. जैसे कि मैं भी बहुत अकेला फील करती हूँ. इस साल का मेरा रेजोल्यूशन पता है क्या है? मैं बताती हूँ. To meet one person. नहीं. नहीं, मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं डेटिंग एप्स में नहीं जाना चाहती.
Wow. I was going to ask you this at the end of the segment. Yeah, go ahead. मेरा रेजोल्यूशन ही ये है कि मुझे Hmm. हिंज, Hmm. बम्बल, Tinder. टिंडर, आइल किसी के नशे नहीं करने हैं. I realized in the last year, whenever I felt rejected or demotivated, I would download the app, make my profile, use it for 2 days, feel validated, and then delete it. True. It became like a habit for me. And then this year, I made sure, like till now, I have not downloaded any app, not made a profile once, and I don't plan to, I don't intend to, क्योंकि मुझे किसी से टकराना है जीवन में. मैं उस तरीके का मोहब्बत, उस तरीके की प्यार करना चाहती हूँ. लेकिन I realized that it was making me feel more lonely and I was becoming more dependent on the external validation that I was getting. And I identified that, and now I've made sure that I'm not going to do it. Wow. So technology is not an answer to loneliness. It is only going to widen what we feel inside, because there is a reason. मैं पता नहीं आप भगवान में मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन there is a reason कि यूनिवर्स में भगवान ने या फिर यूनिवर्स ने टेक्नोलॉजी को खुद से नहीं बनाया. Okay. हम लोगों ने बनाया है अपने लिए. Hmm. So there is a reason why the universe can exist without technology. Everything that is important to a human cannot live without, is available, it's present in the nature. And anything that is not in the nature is what human can actually live without. True. The solutions are not in man-made things. वो तो हमने बना दिया है. बढ़िया कैपिटलिज्म चल रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं तो खुश रहें. लेकिन in the end, I think the solution to feeling less lonely is by overcoming this fear of not being able to talk. And understanding कि AI गर्लफ्रेंड आएगी लेकिन वो तुम्हारा माथा नहीं सहलाएगी. है ना. वो तुम्हारी बातें समझ नहीं पाएगी. सुन लेगी लेकिन समझ नहीं पाएगी. तो I think, I just hope, I just pray that people identify this and people understand this, because No, but tell me one thing. हाँ. If I can approach a girl from like, because it's an AI girlfriend and I can talk in the app, right? Why I can't go and face the girl and just talk? What's the problem? What's the problem with the guys? बस रिजेक्शन का डर है ना यार. तो ये रिजेक्शन का डर कैसे निकाले हम? बाय आइडेंटिफाइंग कि ये डर क्यों है. मैंने अपना जो भी मेरा डर था, आई ओनली रियलाइज्ड इट बिकॉज ऑफ थेरेपी. एंड इन थेरेपी आई रियलाइज्ड कि मतलब सोल्यूशन कभी भी ना इस चीज़ में नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा. प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि मैं ये क्यों नहीं करना चाहता, या फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ. True. पता है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए ये चीज़ कि हम खुद से सेपरेट भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार उस टाइम पे मैं झूठ इसलिए बोल रही थी बिकॉज आई रियली वॉन्टेड लव, एंड आई वॉन्टेड लव बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन माई चाइल्डहुड. तो वो मेरा ट्रोमैटिक इंसिडेंट की वजह से मैं ऐसा फील कर रही थी. और जो डर अभी भी मुझ में है, दैट इज़ बेसिकली माई इनर चाइल्ड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी. Okay. और हमें खुद को समझने के लिए ना, खुद की किसी भी फीलिंग को समझने के लिए ना, खुद को अलग करके देखना पड़ता है एज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम अ बर्ड आइज व्यू. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को समझने के लिए ना उसे बदलने की जिद को छोड़ना पड़ता है. Okay, this is really deep. Go deep in this. Good This is evening. like relationship advice. As in, don't try to change a person. Try to understand that person. Okay. And when you will understand without wanting to change a person, that person will automatically change. Or your perspective towards that person will change. For example, you are with this one person जो कि बहुत गुस्सा हो जाती है. ठीक है, तो तुम उसे बोलोगे गुस्सा मत हो, तो वो और गुस्सा होगी, क्योंकि इट्स हर इनर चाइल्ड गाइडिंग हर टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन विद एंगर. है ना, उसके साथ कुछ हुआ होगा. लेकिन यही तुम बोलो कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. हमें क्या इंस्टेंट जजमेंट करना है ना कि यार ये गुस्सा हो जाती है, यार पागल लड़की है ये, हटाओ इसे. नहीं, रुको, क्यों हो रही हो गुस्सा, क्या हुआ, व्हाट आर यू फीलिंग.
find those answers. And when she will respond to you, either you will understand कि गुस्सा नहीं है कुछ और है, और she will understand कि उसका जो fear है जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है वो baseless है. तो either she will change or your perspective towards the situation and reaction would change. True. Solution. Nice. Instant judgment क्यों करना है? थोड़ा आराम रखो. सब्र. 3 तरीके हैं इस दुनिया में जीने के लिए. सब्र, शुक्र और तवक्कुल. सब्र इज पेशेंस. कोई भी चीज़ आए पेशेंस से समझनी चाहिए कि भाई क्या है. शुक्र, फीलिंग ग्रेटफुल कि चलो ठीक है अभी जो है, आई एम वेयर आई एम टुडे बिकॉज यूनिवर्स वांटेड मी टू बी, बिकॉज माई पास्ट वर्जन वांटेड मी टू बी, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस. एंड तवक्कुल इज हैविंग फेथ इन गॉड्स प्लान. Okay. बस. Faith in destiny. गॉड्स प्लान. Okay. यूनिवर्सेस प्लान. Okay. So why do you believe that universe, like obviously law of attraction and law of, whatever, manifesting is there, right? But can you change the destiny which is written by the universe? यार मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फेवरेट लाइन है, कि हम अपने हाथों की लकीरों को बदल नहीं सकते. Okay. है ना. ये जो आए हैं हम, जैसे कि मैं नहीं बदल सकती कि मेरी हाइट छोटी है, मैं नहीं बदल सकती कि मेरे हाथ छोटे हैं, मैं नहीं बदल सकती कि मैं इस परिवार से आती हूँ, मैं नहीं बदल सकती बहुत सारी चीज़ें. लेकिन अगर मैं इन सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दूँ ना, तो मैं अपनी पूरी कहानी बदल सकती हूँ. तो जो मेरे साथ होगा मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रख के मैं पूरा सिचुएशन बदल सकती हूँ, मैं उसका इम्पैक्ट बदल सकती हूँ. जैसे कि आई एम दिस वन गर्ल हु बिलीव्स, नॉट बिलीव्स एग्जैक्टली, बट हाँ, मेरे को अगर कोई कुछ बोल देता ना कि वनिका ये अभी राहु केतु का ऐसा चल रहा है और तुम्हारे साथ ऐसा होगा, है ना, या फिर होने वाला है, तो मेरे को इंस्टेंट बिलीफ नहीं होता और मुझे नहीं पता कि वो कितना एप्ट है, लेकिन मैं उसे कंसिडर करने लग जाती हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर इट. जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरा एक मेंटल ब्लॉक आने वाला है बिकॉज ऑफ प्लानिटरी पोजिशंस, ऐसा लोगों ने बोला है, तो मैं पहले से ही प्री प्लान करके रखूंगी कि ये मेरा कंटेंट तब चला जाएगा, या फिर ये जो काम मैं तब करने वाली थी मैं थोड़ा पहले से करके रखती हूँ, ताकि उस टाइम पर अगर मेरा मेंटल ब्लॉक चला भी तो भी मेरा काम होता रहे. तो आई कांट चेंज वॉट इज गोइंग टू हैपन, बट द अवेयरनेस ऑफ इट, with the awareness of it, and by changing my perspective towards it, I can change the entire impact of the situation. Exactly. That's great. So I'll tell you, like, why I asked you this AI girlfriend thing. So there's a statistics which says that, why people come on these apps, or why people are, actually going towards AI girlfriends. The major reason is compatibility. Okay? That was the major reason. Or kuch nahi, compatibility was the major reason. And it is said that people are assuming कि सामने वाला compatible नहीं है. Okay, they are not, like today if I am in a relationship, I will give some time. I will obviously, as you said, सब्र रखूँगा. But 3 महीने या 2 महीने के अंदर you will take a decision कि नहीं ये तो नहीं है. Then you move on. Right? So that's why people have that compatibility issue, which is why they are going towards AI things. And I'll tell you some apps, like what, imagine, अब ये imagine करो, जीवन साथी, whatever, the marriage site, right? Even Tinder, Bumble. What if they use some AI algorithms जहाँ आपको compatibility भी match हो जाए? Like for example, your personality traits, somebody else's personality traits, actually knowing the person very well, how the person is, knowing their psychology, seeing their demographics, everything. And seeing the childhood also, right? और फिर वो match हो जाए. Do you still believe कि ये रिलेशनशिप बना पाएगा ऐसे एप्स? यार ये जो AI वाला काम है ये कुंडली वाले लोग भी करते थे पहले, है ना, ये नया नहीं है. मुझे ऐसा लगता है ये कुंडली में पहले ही होता था. वो जो पंडित जी देखते थे ना, वो सेम ही चीज़ होती होगी, बस वो अलग तरीके से पैकेज कर रही है, अलग तरीके से पैकेज कर रही है. पॉइंट ये है कि एज ह्यूमंस ये हमारी फितरत है बदलना. हम बदलते रहते हैं, और जब हम बदलते हैं तो हमारी चॉइसेस बदलती है, हमारी डिसलाइक्स लाइक्स बदलती है. I think we are the sum of the moments we have lived, and with everything that happens to us, we change. So it's very difficult for us to promise forever to someone. True. You can't promise forever. You can just tell the other person that you are going to try your best because of what you feel right now, and you're going to hold on to the shared past, and because of the shared past you're going to make decisions. तो गारंटी तो किसी में नहीं है ना. आज अगर सीमा आंटी भी ढूंढ के ला रही तुम्हारे लिए, ठीक है, वो भी दिमाग तो लगा ही रही है.
जीवन साथी वाले भी दिमाग लगा रहे हैं. तो देयर इज नो, आई थिंक ये डर है, पता है, जो हमें गाइड कर रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा एंड सही हो, कहीं गलत ना निकल जाए. और जब तक डर गाइड करेगा तब तक हमारी नैया तो डूबेगी. तो 7 जन्म का रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता. अरे मतलब करता होगा, लेकिन अगर तुम उसको डिस्कवर करना चाहते हो तो तुम्हें डर के चप्पू से तो तुम अपनी नाव नहीं चला सकते, क्योंकि वो टूट जाएगा. सही है. No, I really like the fact when you said that these things are happening because a human changes, right? हाँ. एक इंसान हर वक्त पे बदलता है. हाँ. पहले स्कूल में बदलता है, फिर कॉलेज में बदलता है, फिर अपनी जॉब में बदलता है. करियर्स की वजह से things change and people change. And it is said that the people you are around with, उस हिसाब से आप सोचने लगते हो. Exactly. तो आदतें बदलती है, सोच बदलती है. और देन ये कलयुग में how do you find a right partner then? कुछ नहीं, अडेप्ट करते जाओ, इतना सोचो मत. नंबर 1, बात करो. ठीक है, बातें करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है. और अगर नहीं हो रहा तो फिर इट इज़ नॉट मेंट टू बी. ओके. ठीक है. और बातें याद करो कि बातें सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि यार बोलना है. ट्रू. समझना है, सोल्यूशन निकालना है. इंटेंट बातों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हाँ बात तो कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे बता रहा हूँ वो समझ ही नहीं रहा. अरे चलो, वो नहीं समझ रहा, तुम समझने की कोशिश करो. तो आई थिंक नंबर 1 इज कॉन्वर्जेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड समवन एल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अंडरस्टैंड दैट फॉरएवर इज डिल्यूजनल. ये मेरी कल की रील भी थी. मतलब understand that forever is delusional, because everything is going to end. And you can't let the fear of end guide you in directions that you want. So you have to tell your fear कि you know your best, तुमसे हो जाएगा, है ना. मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे घर पे ना मम्मी ड्राइव करती है, पापा नहीं करते. पापा का बचपन में कुछ तो एक्सीडेंट हो गया था, तो पापा ड्राइव नहीं करते. तो अब मम्मी क्या ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है, उन्होंने सीखा है अभी 2-4 साल पहले ड्राइव करना. और पापा की एक बुरी आदत है कि जब भी वो मम्मी के पास बैठे होते हैं ना, उनको डायरेक्शन देने में बहुत मज़ा आता है. उनका गिल्टी प्लेजर है ये, उनको डायरेक्शन देना. बोलते हैं अरे ये ऐसे मत लेना, अरे इधर से टर्न नहीं लेना, ये मत करना. और मम्मी इरिटेट होती रहती है कि अरे आप ही को करना तो आप ही चला लो. एंड आई हैव रियलाइज्ड कि पापा ना जब गाइड करने की कोशिश करते हैं ना, तो मम्मी बहुत डर जाती है और मम्मी उल्टा सीधा लेने लगती है. यही अगर पापा शांत बैठे होते हैं ना, तो मम्मी बहुत कॉन्फिडेंटली ड्राइव करके घर ले आती है. तो अगर डर तुम्हारे ड्राइविंग सीट पे बैठ के तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है, तो उसको ये बताओ कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. डर needs to understand that you're capable of. My father needs to understand that my mother is capable of driving home. And once my mother tells my father that and he's silent, we have the capacity to drive ourselves home safely. This is a perfect example of love languages. Yes. Right? The 5 love languages. If you are able to, explain the other person what the love language you have, right? Maybe it's gifting, maybe it's physical touch, maybe it is anything. तो अगर आप effectively मतलब communicate कर पा रहे हो, तो पहली बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? In relationships, the other person assumes कि उसको पता होना चाहिए ना, इतने साल मेरे साथ रहा है, कितने साल मेरे साथ रहा है कि उसको पता होना चाहिए कि मैं कैसे सोचता हूँ या सोचती हूँ, राइट? एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. बट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू जस्ट गो एंड कम्युनिकेट, जस्ट से, राइट? लाइक मुझे ऐसा लगता है इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, है Okay. मेरे पास पता नहीं कैसे आ रहे हैं इतने छोटे से दिमाग में इतने सोल्यूशंस. एक्सपीरियंसेस. लेकिन अभी मेरी एक दोस्त है, वो क्या है ना कि जब मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ तो वो यू आर वेलकम नहीं बोलती. तो मैंने उससे बोला कि थैंक यू, जब मैं थैंक यू बोले या तू थैंक यू बोले तो यू आर वेलकम बोलेंगे. तो उसने कहा आई थिंक वी आर पास दैट स्टेज कि हम यू आर वेलकम बोले. तो मैंने कहा नहीं, देख बातें यहीं से ख़राब होती हैं. जब हम छोटी छोटी चीज़ें अज्यूम करने लग जाते हैं ना, तब हम बड़ी बड़ी चीज़ें भी अज्यूम करने लग जाते हैं. माना हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या हुआ, वी आर स्टिल इंडिविजुअल्स. सो से थिंग्स दैट आर सपोज टू बी.
थैंक यू सॉरी, वो है ना करण जौहर का डायलॉग कि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, अरे भाड़ में जाओ। नहीं, जहाँ पे थैंक यू ज़रूरी है थैंक यू बोलो, Right. जहाँ पे सॉरी ज़रूरी है सॉरी बोलो। सामने वाला अज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम इन बेसिक अजम्पशंस को नॉर्मल मानोगे तो जो बड़े अजम्पशंस हैं उनको भी नॉर्मल मानने लगोगे इवेंचुअली, True. और उसकी वजह से तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप्स में दिक्कत आ जाएंगी। तो जब वो कैंसर है तुम्हारा अज्यूम करने का, वो इतने से स्टेज पे है, उधर ही टैकल कर लो, मत अज्यूम करो। Exactly. थैंक यू And बोला, यू आर वेलकम। I'll tell you कि बहुत लोग, you know, and I have seen in relationships, बहुत लोग जाके पूछते हैं क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे. The other person never speaks. वो हो जाता है built up. ठीक है, Yeah. 1-2 साल बाद वो फूटता है कि तूने ये किया था, तूने वो किया था, तूने ये किया था, and you know that counting comes in कि तूने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तेरे लिए ये किया, राइट। because it builds up. आप पहले टाइम पे जब वो पूछ रहा है कि क्या हुआ तुझे, बोल just दो। communicate well. और अगर नहीं बोला जा रहा है, मान लो नहीं बोला जा रहा है, होता है, कई लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते, टोटली अंडरस्टैंडेबल। देयर आर मीडियम्स टू एक्सप्रेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कांट टॉक ऑन फेस, टेक्स्ट, कॉल। नॉट कम्युनिकेटिंग इज नॉट द ऑप्शन। Okay. Find a medium in which you're comfortable to communicate. Whether it's writing emails, whether it's writing text, whether it's giving handwritten letters, whether it's talking to that person, whether it's calling that person, whatever it is that. But how do you identify? Let's say, you know, I am somebody who texts, right? हाँ, And let's say someone else who is a phone person. हाँ, तो How आप do you- टेक्स्ट पे बोलो, वो कॉल पे बोलेगा। मेरे पहले बॉयफ्रेंड के साथ मैंने ये किया था, वो कॉल पे बोलता था, मैं टेक्स्ट पे लिखती थी, क्योंकि हम अच्छा। रात को बात करते थे और मैं आवाज़ नहीं कर सकती थी। तो वी फाउंड अ मीडियम, नो Okay. मिडिल ग्राउंड। वो पूरी रात को बात कर रहा है मुझसे और मैं कंबल के अंदर टेक्स्ट कर रही हूँ। तो जैसे उस सिचुएशन के हिसाब से हमने सोल्यूशन निकाला, वैसे जैसे कि बस इतना सा बोलना होता है ना कि यार आई डोंट थिंक आई हैव एन आंसर टू इट राइट नाउ, बट आई विल गो होम एंड टेक्स्ट यू। Got it. मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, राइट, एंड उसका ब्रेकअप क्यों हुआ है? द ओनली रीजन द गर्ल वांटेड कि वो लड़का टेक्स्ट किया करे, सिर्फ टेक्स्ट किया करे, बट लड़का था जो फोन पे बात करता है। अब इसके लिए ब्रेकअप हुआ है, दैट्स द मेजर कंफ्यूजन व्हिच हैपेंड, एंड ये ब्रेकअप हुआ, एंड इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ 7 years. So, and after 7 years you're identifying the mode of like language to communicate is very very rare, right? So I've seen that coming in. So आई थिंक वो कॉस्ट टेक्स्ट और कॉल का दिक्कत नहीं है। exactly it's more, that's what I'm saying, it's a built up of many Yeah. things together, and you know, at the first if you communicate well, things will get sorted. So I want to know from you कि what is an independent woman according to you, a self independent woman, because अब हर लड़कियां बोलती है कि मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। पहले तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता क्या है, और जो लड़कियां सोचती है कि मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है तो कैसे बन सकती है? व्हाट आर द वेज, financially also, mentally also, and by freedom? मेरे को तो लगता है ये टैग ही गलत है। सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी टैग खुद को क्यों देना है, मतलब नहीं करना। आई डोंट थिंक, आई हैव रियलाइज दैट व्हेन आई सॉ women in my family not being able to make decisions for themselves, I became hyper independent. I would not let my family come close to me, thinking that they will eventually feel that it is their right on me to take my decisions. तो मैंने Okay. उनको खुद से दूर रखा ताकि वो ये ना समझे कि उनका हक है मुझ पर। I became hyper independent when I started pushing my friends away. Instead of communicating to them whatever I was feeling, I thought I can stay without them. मैं उनके बिना रह सकती हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद बना लूँगी। But now, when I have everything that I dreamt of at that time, I feel lack of that association with family or friends, and I regret that. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहते हो। आप यू वॉन्ट टू बी विद योर सेल्फ, बट वाई इज इट दैट यू वॉन्ट टू बी विद योर सेल्फ? Okay. बिकॉज if you try to be hyper independent, you will be lonely. ख्वाब हमें अकेला कर देते हैं, और माना कि वो अकेलापन हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है, लेकिन ज़रूरी है ये जानना कि हम किस तरीके से ज़िंदगी जीना सीखना चाहते हैं। तो
I feel कि everything lies in knowing why, the whys behind what. क्यों? फैमिली के साथ रहकर भी आप अपने लाइफ को इंडिपेंडेंट बना सकते हो. True. देयर इज अ मिड वे. तो वो चीज़ जो गलती मैंने की थी, दैट आई पुश्ड माई पेरेंट्स अवे, माई फ्रेंड्स अवे, एवरी वन हु डिड नॉट बिलीव इन मी. प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर फैमिली, ऑन योर फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत अकेले हो जाते हो यार आप. But is self-independence related to monetary aspects only, financially? Like, what was going in your mind that time? कि मैं जाऊंगी अकेले मुंबई जाऊंगी, whatever, and will have my own house, will have my own money, will have my own car, will have my own circle. Any kind of decision. So what is self-independent when a woman says कि भाई मुझे self-independent बनना है, होता क्या है? उसको नहीं चाहिए कि कोई और उसके डिसीजंस ले, बस सिंपल. दिस इज द आंसर. फाइनेंशियल हो, कहाँ किसके साथ क्यों बाहर जाना है, ये वाला आंसर हो. शी डजंट वांट टू बी क्वेश्चनड. दैट इज इट. अच्छा. उसको नहीं चाहिए कि उसको हर अपना स्टेप एक्सप्लेन करना पड़े. शी वॉन्ट्स टू बी अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. ट्रू. क्योंकि हमें गलतियां बचपन से सिखाया जाता है कि औरत होकर, एक लड़की होकर हम गलती नहीं कर सकते हैं, और अगर हम गलती कर देंगे तो हमारी फैमिली का नाम डूब जाएगा, या फिर सब लोग उनके मम्मी पापा की परवरिश को क्वेश्चन करने लगेंगे. हमें कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है कि अगर हमने एक गलती कर दी ना तो हम अच्छी लड़की से बुरी लड़की वाले टाइटल में आ जाएंगे और सब हमें उस नज़रों से देखेंगे. तो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़की बनना है, मैं ये चाहती हूँ कि कोई और मुझे ये ना बताए कि एक संस्कारी लड़की होने का डेफिनेशन क्या है, या फिर मुझे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने चाहिए. मैं गिरना चाहती हूँ, मैं संभलना चाहती हूँ, है ना. मैं अपने आप अपना रास्ता बनाना चाहती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं वो रास्ता अकेले बनाऊँ. आई वॉन्ट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू चीयर मी अलॉन्ग द साइड, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी लिविंग ऑन माई ओन टर्म्स. Actions will be done by you. एग्जैक्टली. आई वॉन्ट टू बी ट्रस्टेड. कि मेरे को ट्रस्ट इस चीज़ का नहीं चाहिए एज अ वुमन कि आई कैन हैंडल अ कंपनी और आई कैन हैंडल दिस. ऑफकोर्स वो चाहिए होगा जब प्रोफेशनल स्पेस में मैं उस जगह पे आऊँगी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मुझे अपनी लाइफ को लेके आपका ट्रस्ट चाहिए कि मैं अपनी खुद की लाइफ की डिसीजंस खुद ले सकती हूँ. मुझे सिर्फ इतना भरोसा चाहिए कि मेरे अंदर एक इंसान है ना, एक पावर बैठी है जो मुझे गाइड कर सकती है, और अगर वो मुझे गलत भी गाइड कर रही है तो भी वो मुझे सिर्फ इसीलिए गलत गाइड कर रही है ताकि इवेंचुअली मैं एक कहानी लिख सकूँ, एक सक्सेसफुल रास्ता खुद के लिए बना सकूँ. True. तो आई थिंक दिस इज व्हाट बीइंग इंडिपेंडेंट Amazing. इज. So I think this is a very good take. I'll tell सब लड़कों को वहाँ, when a girl says कि मुझे independent बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि they don't need you. They obviously need you, but as a support, as a cheerleader. Yes. And इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने, और I know for a fact, सब आज के टाइम पे things are changing, but पहले ऐसा होता था कि if लड़कियाँ ज़्यादा कमा रही है, it was a major ego issue for male, right? And I don't want to make it just a woman-centric thing. I know for a fact it's a reverse thing also. Yeah. Ki, girls also want to, earn a lot, and if guys are also earning a lot, it's more like a competitive scenario. So yeah, it's said that women teach other women patriarchy. What is your point of view on that? And, why it is happening in the country right now? मैंने जैसा पहले बताया कि इट्स बिकॉज ऑफ द वे वी आर ब्रॉट अप. इट्स लाइक वी आर टोल्ड, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्दों को एज अ थ्रेट लेना है एंड औरतों को एज अ कंपटीशन लेना है. ऐसा बोला नहीं जाता, लेकिन जो परवरिश होती है हमारी वो उसी तरीके की इंडिकेशन देती है कि अगर दूसरी लड़कियां हैं तो उनसे बेटर बनना है, उनकी तरह बनना है. तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो हमारे चाइल्डहुड में ही हमारे अंदर डाल दी जाती है. एंड द ओनली वे वी कैन डील विद इट इज़ अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ इट. उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का. और बाकी आई थिंक इफ़ यू फील लाइक women आर नॉट सपोर्टिंग women and being a woman it affects you, then you start doing that. तो जैसे मेरी recent I posted a story on Taper Tale which is called तू कर लेगी यार, and it was about how I have met so many women in my travel journey who have through their actions told me that I can do it. Okay. Like for example, there was a time when I was working with red light area women in Mumbai.
and I would teach their kids in the evening how to write. They were in 6th standard, 8th standard, and they were going to schools, but they still did not know how to write a few things. डी बी में दिक्कत हो रही थी उन्हें. और जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे इनको पढ़ाना तो है. और दिक्कत ये होती थी कि उनका स्कूल शाम के टाइम पे होता था और सुबह के टाइम पे उनका कुछ और होता था, तो दे डिड नॉट हैव टाइम टू ट्यूशन्स फॉर कोचिंग्स. तो मैंने सोचा कि जब वो स्कूल से 6 बजे वापस आएंगे मैं उसके बाद जाके उन्हें पढ़ाऊँगी. लेकिन चैलेंज ये था कि शाम के 7 बजे वहाँ का वर्क टाइम हो जाता है. तो बीइंग अ गर्ल, walking through those lanes at 7:30 is very dangerous. Okay. It's not dangerous exactly. You have to basically hear a lot of things about yourself. The comments people pass, और सबको लगता है कि एक अकेली लड़की वहाँ पे वॉक कर रही है, तो वो बहुत अजीब तरीके से देखते हैं आपको. तो दैट टाइम, इवन दो दैट वाज हैपनिंग, आई वाज स्टिल गोइंग देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स. एंड माई स्टूडेंट्स वुड कम टू पिक मी अप एट कमाथीपुरा का जो बिगनिंग वाला एरिया है मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास में. दे वुड कम टू टेक मी एंड दे वुड गाइड मी टू देयर होम्स. एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि यार अगर मैं उनको ABCD लिखना सिखा दूंगी तो इनकी लाइफ तो नहीं बदलने वाली है. बट देन वन डे when Chand wrote his mother's name, Fatima ji's name, on a piece of paper, and she was so happy about it that she took that paper and put it on walls of her doors, I realized कि किसी की लाइफ बदलने की शुरुआत ना सिर्फ वक्त और नियत से होती है. So the happiness that I saw in Fatima ji's eyes that day has always made me believe that even though there is a possible threat, I need to keep doing good. I need to keep overcoming those fears. It's like that one reaction. I still have that visual image very clear in my eye, in front of my eyes, and every time I feel that, that suddenly pops up. Similarly, there was this woman in गुनहर वैली ऑफ हिमाचल, उर्मिला आंटी. मैं जब लाइफ में पहली बार ट्रैक करने जा रही थी, मैं कभी भी स्पोर्ट्स टाइप की लड़की रही नहीं हूँ, लेकिन लाइफ का पहला ट्रैक मैंने मॉनसून में किया था जब सारे पत्थर स्लिपरी हो रहे थे, ओनली बिकॉज अ लोकल फीमेल ट्रैकिंग गाइड उर्मिला आंटी, जो कि 50 साल की बुढ़ी औरत हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वो कोने तक लेकर गई. एंड शी कॉन्स्टेंटली टोल्ड मी दैट आई कैन डू इट. Similarly, there was this another girl, Achal. I was going through a breakup. I was in Goa all by myself, going through anxiety, going through possible depression. Everything was happening. I was so lonely. That time, Achal was this one girl that I judged a lot because she was way more independent than I was, way more understanding, way more strong than I was. And she had everything that I wanted to have at that point. बट इवेंचुअली वन डे व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम द बीच और मेरा एक जगह पे पाँव मुड़ गया और मैं गिर गई एंड आई वाज ब्लीडिंग, दिस गर्ल केम टू माई रेस्क्यू. उसने अपना टॉप फाड़ा है सड़क के बीच में, है ना. शी लिटरली टोर हर टॉप एंड शी gave me band-aid and she told me he's not worth it, and I never told her about my breakup. I don't know how. So when I see these examples of women supporting me throughout my journey, it just, women support women but those stories are not told. मैं मानती हूँ आज मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार रोका है चीज़ें करने से, मेरी चाची नानी ताई बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, बट माई मदर नेवर वॉन्ट्स मी टू बी लाइक हर. मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी अचीवमेंट तब हो जाएगी जब मैं अपनी माँ की तरह नहीं बन पाऊँगी, है ना, और मैं अपनी माँ की तरह नहीं रहूँगी, लेकिन आई एम गोइंग टू बी लाइक हर. But I want to have a different story than her. And she also wants that. True. So even though she doesn't agree to everything I'm doing, she's constantly supporting me by making me feel that I can have a life different than hers. She's just concerned. So I think these examples need to be told where women are supporting women, because then people will understand. Then women will understand that we need to break the chains. We need to unlearn what we have learned as a kid. And there is this community that we need to build, and that is what I'm constantly working on. अभी मैं कुछ दिनों बाद I'm starting women friendship meetups, and I have this whole plan for this year which is about bringing women to a safe where they can share and they can feel like they're not alone. Whatever they are feeling is also felt by someone else. Wow. So I know that you have been solo traveling many places, right?
मुझे बताओ कि 3 top places which will be like heaven for women, right? Which they can travel alone, which is obviously safe, secure, and it is actually worth it to go there so that you know they get empowered. तो 3 ऐसी places आपके हिसाब से जो आपने explore की हो. सेफ तो कोई जगह नहीं है इंडिया में, वर्ल्ड में कोई Okay. नो प्लेस इज सेफ for you. That is true, but you can take your safety measures along with you. You need to tell your parents where you are, you need to tell your friends family where you are. तो आई थिंक सेफ्टी जगह में नहीं, आप जिस तरीके से बचा सकते हो खुद को उस चीज़ में, वो मेजर्स लेने में है. बट अकॉर्डिंग टू लाइक द प्लेसेस दैट आई हैव ट्रैवल्ड, for me Goa has always been very safe. Like I've walked nights में and it has been safe. But like according to stats, Goa is most accounted for rapes and all of these things because these things happen there. But it has never happened with me. So for me it's safe. But for people who have gone through 1% of it, or who have seen that possible threat, it's not safe for them. So I think solo traveling mein, it's about identifying how to protect yourself and how to travel. Like it just, solo travel is a very lonely process. But only by facing it you can get over loneliness. ठीक है. मतलब आप इतने अकेले रहने लग जाते हो. जैसे कि मेरी एक कविता है कि सबसे दूर अकेले रहना सिगरेट फूकने जैसा होता है. कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आपको लगने लगता है कि एक सुट्टा फूकने से, सबसे डिस्कनेक्टेड रहने में सब ठीक हो जाएगा. लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिगरेट और अकेलापन दोनों हमारी ज़िंदगी के कीमती पल हमसे छीन लेते हैं. शायद मेरी उम्र हो रही है, मैं सिगरेट तो नहीं फूकती लेकिन बहुत अकेली रहती हूँ. अकेलापन मेरे पास, मेरे साथ, मेरे सामने बैठता है. वो मेरे साथ बस पकड़ता है, फूल खरीदता है, किताब पढ़ता है, मुझसे बातें करने की कोशिश करता है. वो मेरे पास ही आता रहता है. वो मुझे दूर से देखता रहता है. ऐसा देखता है जैसे उसे कुछ कहना है मुझसे, लेकिन मैं उसे वो जगह नहीं देती कि वो मुझसे कुछ कह सके. मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वो मेरी ज़िंदगी से चुन चुन कर ढूंढ लेता है वो पल जब वो मेरे पास आकर मुझसे कुछ कह सके. और जब उसे वो पल मिल जाते हैं तो वो मेरे कानों के पास आकर वहाँ पर एक सुट्टा फूकता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र हो रही है, तुम बहुत अकेली हो. अकेलापन बेसिकली इज़ अ सेपरेट फीलिंग. इट्स सेपरेट फ्रॉम यू. यू आर नॉट लोनली. लोनलीनेस इज सेपरेट. तो आई थिंक जब आप अकेलेपन के साथ रहने लग जाते हो तो आप उससे बातें कर पाते हो. आप उसे ऐसा सेपरेट बीइंग देख सकते हो. और जब आप बात करोगे उससे तो आप रियलाइज़ करोगे कि इट्स ब्यूटिफुल. लोनलीनेस कैन बी टर्न्ड इनटू सॉलिट्यूड इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग टू अकेलापन ऑल्सो. Wow. That's really deep. Okay, I just lost my path. Great. तो नहीं, but again, मेरा question वही. So one you said Goa is good. नहीं, Goa is not good. अच्छा, What मतलब I'm saying is, what are the 3 places जो आपको सबसे अच्छे लगे? हाँ, और ये पूछते हैं. मेरे को ये भी जानना है कि सोलो ट्रैवलिंग होता क्या? क्योंकि आइडियली आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू मी, राइट? मेरे लिए सोलो ट्रैवलिंग ऐसा कुछ होता ही नहीं है. आई मीन इवेंचुअली यू आर गोइंग विद, either you're going solo or you're going in a trip where you don't know anybody, right? And you're going with a trip organizer. आप जाते हो, आपको वहाँ नए फ्रेंड्स मिलते हैं because you explore with new people. That's solo traveling. और सोलो ट्रैवलिंग के आप अकेले चले गए. पहले तो मुझे ये डिफरेंस जानना है कि दोनों में क्या है, और सोलो ट्रैवलिंग क्यों करते हैं लोग, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, और 3 टॉप प्लेसेस तो मुझे आज जाननी है. 3 टॉप प्लेसेस बता तो मैं चला जाऊँ. बनारस. ठीक है. If you have not been to Varanasi, I don't know what you are doing. Okay. Banaras is very important. Then I think Rishikesh is one of the places जहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ, लेकिन जितना भी वक्त गई हूँ तो मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत सी जगह है वो. Third I think is Beer. Beer has been a very special place for me. Amazing. तो मैं तो वहाँ पे 6-7 महीना अकेली रही हूँ, तो Beer has been बहुत ज़्यादा. तो उसके अलावा भी I don't think I can say that the other places are not. जैसे उदयपुर has been very life changing for me. Very impactful. Amritsar has been very important for me. Goa has been very important. Even Lonavala has been very important. Wow. So I think all these, it's not the place, you know, it's the way you are traveling. Have you explored Mathiran?
Yes, of course I have. I think for me it's one of the best places around Mumbai. Yes, I have been to Mathuran. मैं मुझे रोकना पड़ता खुद को ट्रैवल करने से कि मैंने कब बहुत हो गया अब और नहीं. तो yeah, but I think Banaras. If somebody tells me my favorite place, it's Banaras. Okay. Banaras is it gives me chills every time I go there. Like, it is, I can't explain. It's so destructive for me that I like it. Okay. Nice. Now coming to a point that solo travel exactly होता क्या है. तो कुछ नहीं है. It's just you travel to feel free of judgments. है ना. आप अपने दोस्तों के साथ इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको एक कैरेक्टर होल्ड करना है उस ट्रिप पे. तो जब आपको कैरेक्टर नहीं होल्ड करना है तब आप सोलो ट्रैवल करते हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स के बीच में हो, चाहे वो आप अकेले कहीं पे भी जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए. आई थिंक सोलो ट्रैवलर इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या आप वो कैरेक्टर ब्रेक कर पा रहे हो जो आपने इतने टाइम तक अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बीच में बना रखा है. इसकी नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि एज यू नो हमारी जनरेशन बहुत लोनली है, सारी दिक्कतें हैं. एंड लोनलीनेस का आंसर टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई गर्लफ्रेंड्स नहीं है. लोनलीनेस का तरीका है बातें करना, पर बातें करने के लिए आपको पहले ये जानना है कि आप एक्चुअली बात क्या करना चाहते हो, और उसके लिए आपको खुद से बातें करनी पड़ेंगी. तो आई थिंक अकेले हैं इसीलिए अकेले घूमना चाहते हैं ताकि अकेलेपन को फेस करके उसको सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर सके. Got it. So I'll tell you now, I want to know आपका content creation journey, ठीक है? But before we go towards content creation, what are the three, who are the three women you idolize a lot in the country, and why so? Okay. I think I can't give you a 3 का number because there are so many, है ना, so many women. Like first would be my मासी. तो मेरी मम्मी, मासी और मेरे मामा 3 भाई बहन हैं. लेकिन उस टाइम पे भी माई मासी हैड द करेज टू बिल्ड अ लाइफ ऑफ हर सेल्फ. शी टुक अ स्टैंड एंड शी इज स्टिल लिविंग विद दैट स्टैंड. शी इज़ elder than my mother, but she's not married. Okay. She worked as a company's like some higher position in a bank, and I think that for her was a very big decision because they both came from same background. So I think one is my masi, who is very inspiring for me. Second, I would say is basically Kopal, who is my manager. Okay. I would not call her my manager because she has always been my godmother and I've seen her very personally. The kind of patience she has is extraordinary. Okay. It's brilliant. She makes you feel heard, and she has time to do all of these great things and still be present for you in person as a person. So I think that is commendable. एंड मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर उन्हीं लोगों से होती हूँ जिनको मैं बहुत पर्सनली जान पाती हूँ. अच्छा. तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि यार आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय रेबेका जिनकी बुक मैंने पढ़ी, क्योंकि मैंने उनका काम पढ़ा यार. बहुत फ़र्क होता है अच्छे काम में और अच्छे इंसान में. हर इंसान जो अच्छा काम कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान भी हो. और मेरे लिए अच्छा काम तो होता रहता है लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है. ये मेरे नाना ने मुझे सिखाया था और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई मंत्रा फॉर लाइफ. तो इसीलिए जिनको मैं जान पाती हूँ वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो एक तो हो गई मेरी मासी, एक हो गई कोपल, एंड अदर देन दैट आई थिंक माई मदर ऑल्सो, जिनसे मेरा एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है बचपन से ही. आई कांट स्टे विद हर, आई कांट लिव विदाउट हर. आई नीड टू कॉल हर एवरी डे. I need to see her face. I can't not think of her at any point because she is wonderful. She is beautiful. She is everything that I would want to be. And never in my life I thought I'm going to say this about my mother क्योंकि मैंने बचपन से उन्हें एक unsuccessful, compromised महिला की तरीके से देखा है. But now I realize that making a choice that time to marry at such an early age for her family, understanding her mother's
story and her arguments and then sustaining with that choice for so long, even after so many difficulties, I think nothing can be more strong than that. It is as same as like weak father produces strong sons. Yes. So maybe हाँ, similar. and I think आई हैव जज्ड हर अ लॉट. मतलब मैंने उनको बहुत वैसा फील करवाया है, बट आई थिंक आई एम हु आई एम टुडे बिकॉज ऑफ हर, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट. I won't say that to her on her face because I don't want to. Got it. But I want to make her feel that way. I don't want to say it. I want her to feel it. So I think my mother has inspired me a lot because मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी ने बोला था ये कि वनिका, it's not about making the right choice. It's about sticking to one. Wow. She did stick to her choice. And even though she has her regrets, she still decided to stick to that choice. And if she did not do that, then I think I would be even more traumatized than the therapy that I've taken for. Got it. So yeah, that. Amazing. So एक बहुत अच्छी बात की कि you know you get inspired by the people you're around with. It's not from the people's work. This is a like eye blowing for me also. कि अभी तक मैं बहुत सारे लोगों के कामों से बहुत इंस्पायर था. In specifically if we talk about women today, I tell you there are people like Falguni, right? Falguni Nayar. She started Nykaa at 55, left a corporate job, 55 पे चालू किया, आज IPO कर दिया. Second was Karishma, Humans of Bombay, like her podcast and the way, as you said, मैं कभी मिला नहीं हूँ, but मुझे पता है कि she will be a amazing human being because the way she has hold the company and the people of the company, I have been following her work and it's great. And obviously third, which I recently got to know about Ria Upetri. I think Ria is someone who basically started her social media channel right now and she's inspiring many people. She told one thing very clearly कि बहुत सारी लड़कियां आज टेक के बारे में कंटेंट नहीं बना रही है. एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा गैप है. तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को टेक के बारे में, सो दिस एक्चुअली इंस्पायर्ड मी कि भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बिजनेस आइडिया है. सो शी इज़ डूइंग वेरी ग्रेट. सो आई गेट इंस्पायर्ड बाय देयर वर्क. सो टुडे आई गॉट टू नो फॉर श्योर कि एक्चुअल में मैं इंस्पायर हुआ हूँ बाय द पीपल अराउंड मी. So maybe my mom, maybe, my sister, Yeah. she has been working from 12 years. The way she handles her work, I know her the best, right? I know her, she's a CA. So 12 साल से her professionalism is like pro level. And obviously, my dad and people around me. So thanks for that. Thanks a lot for that. I think it's fancy to say ना कि यार I think I'm inspired by Deepika Padukone. I think I'm inspired by Sudha Murthy. We have seen their work. But True. actual में हम जिनके साथ डेली रहते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं. उनकी जर्नी हमें मोटिवेट करती है. जिनको हम डेली देख रहे हैं वो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि हमारे डिसीजंस में उनके डिसीजंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो इंस्पायर तो हम अपने आसपास वाले लोगों से ही होते हैं, लेकिन एक फैंसी जवाब देने के लिए हमारे पास हमेशा 4-5 नाम होते हैं, जो भी वो भी दे सकती हूँ मैं आपको कि आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस दैट, बट आई डोंट नो देम. आई डोंट नो व्हाट चॉइसेस दे हैव मेड टू डू दिस. तो इसीलिए their work is separate from who they are. It's a reflection of that, but we don't see our actual faces in the mirror. This is truly inspiring for me today. Thank you so much. Eye-blowing. So great. Let's go on the next and the last section of the podcast, and it's very close to, I think, you and me. Me in a different direction, you in a different direction. That is about the Valentine's Day special. That is relationships. So guys, we are having a fun session today. So now, let's go on relationships. Tell me, what is relationship? Like if you want to break that word, what is relationship according to you? And कैसे लाइफ बदली है relationship? I mean, any type of relationship. It cannot be only one side, but any side, right? So आपकी लाइफ कैसे बदली है? मतलब मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते भगवान हमें दे देते हैं, है ना, कि ये हैं अभी ये तुम्हारे खून के रिश्ते हो गए हैं, देख लेना. और कुछ हम खुद से बनाते हैं. जो हम खुद से बनाते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका ब्लेम डालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता. भगवान को नहीं बोल सकते ना कि यू मेड मी मेक दिस चॉइस.
उन बोल सकते हैं कि यार मेरे को इसी परिवार में क्यों रखा, हाँ. मैं इसी घर की बेटी क्यों हूँ. लेकिन जो दोस्त हमने बनाए, जिस इंसान से हमने मोहब्बत करना चाहा, वो तो हमारी खुद की चॉइसेस है ना. तो आई थिंक loving a friend, loving a partner has always been very freeing, because it is like making a choice. It's like choosing my favorite color or choosing how I want to feel in a moment. So I think relationships exactly, मुझे लगता है कि अभी भी मैं figure out कर रही हूँ कि क्या होती है क्या नहीं होती है, but it is very freeing. और अगर वो फ्रीइंग नहीं है तो फिर आई थिंक यू नीड हेल्प. रिलेशनशिप इज इक्वल टू फ्रीइंग. हाँ, फ्रीडम. यस. तो मुझे बस ऐसा लगता है कि देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं. एक जो आपको ग्रीन फ्लैग बना देते हैं और एक जो आपको रेड फ्लैग बना देते हैं. हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि तुम रेड फ्लैग हो, तुम ग्रीन फ्लैग हो. नहीं, 2 टाइप के लोग हैं. एक जो आपको ग्रीन फ्लैग बनाते हैं, दूसरा जो आपको रेड फ्लैग बनाते हैं. And if somebody brings your not so positive side to you, जो आपको बहुत पॉजेसिव बना देता है, उस इंसान से दूर रहना चाहिए. दूसरा इंसान जो शायद थोड़ा सा कंपैटिबल कम है, लेकिन आपको ये बिलीव करवा रहा है कि आप और पेशेंट हो सकते हो और आप वो बहुत नेचुरल तरीके से कर पा रहे हो विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट और ओवर थिंकिंग, then that person deserves a chance, because that person is showing you your green side. हमारी गलती ये है कि हम दूसरों को जज करते हैं, जबकि हमें फिगर आउट तो ये करना है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं. Wow. Amazing. Amazing. I mean, legit amazing. Okay, so I mean, there are so many friends. Again, अगर आप 24 से लेके 29 के एज के बीच में हो, अलग से एंजाइटी होती है शादी की. And you know, there are people who says कि मुझे शादी नहीं करनी. There are people who says मुझे शादी करनी है, but they don't say it out because society क्या बोलेगी, because ना इसके पास कोई बंदी है या बंदा है. अगर है तो अच्छी बात है. Now तो we have changed, right? People are saying कि you know, get a girl for yourself, get a guy for yourself. Things have really changed. But there are people in the third category which are like they want relationship, but they cannot find a right partner. हाँ, मतलब all of us. All of us. True, they cannot write a... So, I'll tell you, according to me, right, to find a right partner is about approach. Is about your approach. So, अगर आप बाहर जाके, you know, you explore, you talk to people, you understand their vibe, you understand what exactly the ideology you have, is it matching with somebody else, go start approach, go for a coffee date, go for whatever date. Maybe it's not a romantic relationship, maybe that person can turn out to be a friend, but जाके approach तो करो. सही बात है. Right? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना बोल देंगे. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे. So एक वो चीज़ है. दूसरी ये कि in arranged marriage concept, it's very different. अरेंज मैरिज में कुछ सोसाइटी बोलती है कि आप यू नो शादी, मतलब इफ़ यू आर मीटिंग अ पर्सन, राइट, पहले क्या होता था कि बायोडाटा एक्सचेंज हो जाता था, एंड यू नो फैमिलीज यूज्ड टू मीट फर्स्ट एंड देन द गाय एंड गर्ल यूज्ड टू मीट. अब उल्टा हो रहा है शायद, गाय एंड गर्ल यूज्ड टू मीट फर्स्ट एंड देन फैमिली मीट्स, राइट. नाउ थिंग्स आर हैपनिंग कि गाय एंड गर्ल मीट कर लेते हैं, उन दोनों को पसंद आ जाता है, एंड फैमिली इज लाइक नो. देन इट कम्स टू बैक टू द पॉइंट कि ये कैसा अरेंजमेंट है, राइट. सो देयर आर मेनी, आई टेल यू अबाउट 3 terminologies which Gen Z uses, okay, and I want an explanation of each and every terminology from you. Okay. First is situationship, second is you know, benching, and third is example zone. What is this? मुझे सिचुएशनशिप के अलावा दोनों नहीं पता है. Okay. मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल हूँ प्यार मोहब्बत के मामले में. मैं तो डायरेक्ट शादी सोचती हूँ. मैं तो देखने लग जाती हूँ फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या मैं वहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगी, मम्मी पापा कैसे है. मैं उस तरीके से मोहब्बत करती हूँ. लेकिन मुझे सिचुएशनशिप के बारे में पता है. सिचुएशनशिप इज़ बेसिकली कि आपको कमिट भी नहीं करना है, पर आप रिलेशनशिप के फ़ायदे भी उठाना चाहते हो, पर जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से एक्ट करेंगे. मतलब कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट फोबिया बेसिकली. आपको पता है बेंचिंग क्या है? बताओ क्या है. So recently I've heard from Gen Z, हाँ. benching is basically एक बैकअप ऑप्शन.
अच्छा. कि you know Oh. I have somebody हाँ. but I can find someone better. हाँ. So let's go and approach and keep it in backup. अगर मेरा first चला नहीं तो दूसरा I'm चलेगा. really concerned. Like, I'm really concerned by people and their approach. And I think I'm also doing benching. Now that you have told that. And the third is even worse. I mean, there is like Example zone. Yeah, exactly. You found someone. Hmm. I mean, let's say you have like there's a best friend, right? हाँ. मतलब आपकी compatibility सबसे ज्यादा best friend से ही होती है, मुझे ऐसा लगता है. तो वो उसका एग्जाम्पल देगी आपको. एग्जैक्टली अच्छा. कि एग्जाम्पल जोन इज बेसिकली कि ये ऐसा होना चाहिए पर ये नहीं चाहिए. समझ गई. आई थिंक ये सब पागलपंती है. दिस इज मेकिंग नो सेंस. बट आई वुड से दैट ऑल ऑफ अस डू इट, है ना. ये टर्म दे दिया है इस चीज़ को हमें गिल्टी फील कराने के लिए. लेकिन हो तो रहा ही है ये. दिस इज But how so for the people, because today is Valentine's Day, हाँ. assuming this is a Valentine's Day week, so if by any chance, I don't want to have breakup stories after this, हाँ. but if any chance, if you want to give a overview or God's eye view, right, कि ये तीनों situation में कोई है, बंदा या बंदी है, right, तो how do they identify the red flags? यही सिंपल तरीका है. फाइंड अ पर्सन हु टर्न्स यू इनटू अ ग्रीन फ्लैग. So you are saying that you should have benching, नहीं you should do benching, नहीं, तो बस एक ही इंसान के साथ कमिट करने को, रिस्क देने को. क्योंकि देखो तुम बाकी सब छोड़ो, तुम अपना मेंटल पीस सोचो ना दोस्त. क्यों थेरेपी में पैसे लगाने हैं तुम्हें. और एक इंसान ढूंढो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए, उसको वक्त देके देखो. नहीं हुआ तो नहीं हुआ. एक तो ये समझो कि हर कोई इंसान है ना, हर किसी इंसान के साथ तुम्हें एक एंड नहीं चाहिए. कुछ लोगों के साथ तुम्हें सिर्फ जर्नी चाहिए. तो और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितना लंबा जीने वाले हो, कितना कम जीने वाले हो. तुम्हारे पास आइडिया नहीं है कि देयर इज नो एंड टू एनीथिंग. सो जस्ट बी हियर एट दिस मोमेंट विदाउट फिगरिंग आउट टू मच. हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं एज यंगस्टर्स, एज जेन जी, एज दिस जनरेशन, कि हमें सब फिगर आउट करना है. वी वॉन्ट टू डू द राइट थिंग. आई वुड रियली लाइक टू से कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ. go with the flow. गो विद द फ्लो. मुझे नदियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. नदियाँ ना इतनी पावरफुल हैं कि वो किसी भी कंटेनर में समा सकती हैं, चाहे वो एक छोटा सा बॉटल हो या फिर एक बड़ा सा टैंक हो. Okay. लेकिन एट द सेम टाइम दे आर स्टिल सो पावरफुल दैट दे कैन एक्चुअली चेंज शेप ऑफ अ स्टोन. जब पानी बहुत तेज़ी से एक पत्थर पे पड़ता है ना, तो निशान छोड़ जाता है और उसे बदल देता है. And it has the capacity to flow anywhere, everywhere, knowing that in the end the ocean is going to be the destination. Wow. तो बस नदी बनना है भाई. ये बढ़िया. पहाड़ बनोगे ना थक जाओगे, क्योंकि हमारे कंधे इतने स्ट्रांग नहीं है. नदी बनोगे ना आगे बढ़ जाओगे. Perfect. So, at the end, when was the last time Yeah. you said or you felt तू कर लेगी यार? Right now, before coming to this podcast. No. So, I mean, give me some story from like a recent story. Yeah. Which you felt that it's one of the best story which I've heard. And मेरे वजह से और मेरे content की वजह से. And because content, right, we were going to talk about Yeah. this. So, content में I want to understand कि content में पहले तो पैसे बनते हैं कि नहीं बनते. Let's make it very straight. हाँ, बनते हैं किसी भी चीज़ से. आज अगर आप क्या बोलते हैं, पेंट करते हैं तो उससे भी पैसे बनाते हैं लोग. या फिर आप सिर्फ इस वुड का इतना सा कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो भी पैसा. किसी चीज़ से बनाना ना एक स्किल है. जैसे कि कई लोग ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा बनाते हैं, कई लोग अपने चैनल नेटवर्क को यूज़ करके, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके पैसा बनाते हैं. तो इंस्टाग्राम खुद से आपको पे नहीं करेगा. कुछ लोगों को शायद करता होगा, मुझे आइडिया नहीं है. लेकिन पैसा कमाना आना चाहिए. दैट इज़ अ स्किल. Okay. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान घर पे आइसक्रीम बना रहा है, उसको नहीं कमाना उस चीज़ से पैसा. लेकिन सेम चीज़ से कोई बाहर अगर स्टॉल लगा रहा है या फिर घर से बैठे बैठे ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा बना रहा है, तो दैट इज़ द चॉइस. इंस्टाग्राम इज जस्ट द आइसक्रीम. नाउ इफ़ यू वांट टू सेल इट in your house for your friends, or you want to sell it outside or sit in your house and still just distribute it to people, that is your choice. So there are ways. Brand collaborations हो गए, using your distribution by selling courses, selling ideas. Third is just by like having a community and taking a membership fees from them, subscription जो आजकल चलने लगा है. तो there are ways. Firstly, but
आपका गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए इंस्टाग्राम से. नहीं. ऑफ कोर्स हम लोगों को बताया जाता है कि अगर हम कोई भी करियर और प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं तो वी नीड टू हैव अ फाइनेंशियल प्लान अलॉन्ग विद इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंस्टाग्राम ना, working on Instagram is like giving birth to a baby when you are starting. You have to give it 9 months. You have to give it patience. You have to actually fully form a character that you need to, not character, you basically have to, actually character only, a fully formed online internet persona that you want people to know you from. So it takes time. It is not going to come in a day. If it does, then it's a surprise, but it might not survive. That is a point. Do you manage your personal Yes, finance yourself? yes. Okay, amazingly. So how, like, let's say कि आपकी, like, this is for every viewer here, right? You got married, assuming, and then how will your finance work? यार वो जब होगा तब देखेंगे. अभी तो बोला नदी बनना है, one day at a time चल रहा है, मैं figure out कर लूँगी. अच्छा, but just giving a heads up, I have, I have read it, I've heard it multiple times, but this is for all the women's, right? Because we talked about self independence and everything. I would always advise कि आपके 4 अकाउंट होने चाहिए शादी के बाद. ठीक है. First is account of the wife, second account of the husband, और ये individual savings account होने चाहिए. ठीक है. Third, दोनों के अकाउंट सेविंग्स में होने चाहिए. मतलब it's a joint account, right? And fourth will be the house expense account. That will be the fourth account. Nice. अब जो थर्ड अकाउंट है जो सेविंग्स हो रही है वो बेसिकली फॉर देयर फ्यूचर प्लान, हाँ. राइट? फर्स्ट एंड सेकेंड मेक्स देम Personal. इंडिपेंडेंट, हाँ, ठीक राइट? है. बिकॉज लड़कों को कोई हक नहीं है कि इफ गर्ल्स आर समझ अर्निंग गए. Yeah. then girls can take their Got own it. decision, guys can take their own Yeah. decision, and this avoids major confusion and major divorces, ठीक है. right? So this is something which I have seen, and I would advise if you are into a early marriage, make sure that you start your accounts in such a way that you save, also you have your experiences. Yeah. So yeah, and Done. so you wanted to end with tu kar legi yaar. So when did you say it last time? When did I say it last time? I think right now before coming here, because I woke up early and I thought, so I woke up early and I thought that I won't be able to do it, sit through it and make sense on this podcast, but I hope I did. And to 29-year-old Vanika who's planning to get married very soon, make 4 accounts. Thank you so much, guys, to watch this episode. First of all, happy Valentine's Day. I hope everybody finds their eternal love, but as Vanika said, nothing is constant. You really need to work hard to build your relationship. And for the people who already have someone in your life, make sure you grow together and you help each other to achieve your dreams together. Thank you. See you in the next episode.